people are in a relationship, तो एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट कर देता है अपने actions से. How would somebody handle those emotions in a fruitful way? So basically एक लड़की की जिंदगी में उसका पहला मेल उसके फादर होता है. सपोज अगर वो ही इमोशनली अनअवेलेबल होगा, जब वो बड़ी होगी तो वो ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगी. इनिशियली तो उसको वो इतनी सारी केयर कंसर्न दिखाएगा, एंड जैसे ही वो उसके साथ जुड़ जाएगी, इमोशनली कनेक्ट, क्योंकि उसको तो प्यार मिल गया, अब जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगी, दैट पर्सन विल अटैक. अब गिल्ट को सप्रेस करने के लिए हम शायद ड्रिंक करेंगे, अल्कोहलिक बन जाएंगे, स्मोक अराउंड करेंगे, व्हाटएवर इट इज. अगर हम लोग अपने शैडो के ऊपर स्टार्टिंग में ही वर्क कर ले, तो आई थिंक वी कैन avoid a lot of addictions, avoid a lot Oh of my things. God, 100%. So you see that, sorry to pick this up, but the youth drowned in drugs. Yeah, definitely. And I've been mentoring a lot of people where um, तो एक बार और स्वागत है आप सब लोगों का वार्तालाप पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमको हमारी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हैं जो पता तो सबको हैं, लेकिन उनको सब लोग इग्नोर करते हैं. क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि सालों से ऐसा ही होता आ रहा है. सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस प्रियंका, who will tell us about a lot of things which are untouched. First of all, Priyanka ma'am, welcome to Vartalap and thank you so much for accepting our invite. बहुत देखा है आपका कंटेंट, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एडमायर किया है. thank you. सो इट वाज वेरी गुड ऑफ यू टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन एंड कम ऑन वार्तालाप. सो आप बताओ कुछ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को. Sure. It's indeed a pleasure to be here, and I feel privileged to talk about the topic that we have discussed. I'm Priyanka, and I'm a teacher by profession, alchemist of tarot, numerology, healing, shadow work, and I'm a makeup artist by parents' choice. Okay. You have practiced makeup artist also as a I makeup did artist for also? the early years of my life when I was graduating. Okay. So at that time I was quite free, and my Okay. parents were like very stressed about what will I do in life. So, Happens. so they made me do this course, which I eventually developed a lot of interest in. And but I think that makes me an artist. From Okay. there, the seed of the artist was sown. Okay. So yeah, that's how. That's lovely. मतलब बहुत सारे variations हो गए एक ही इंसान में. 100%. So Yeah, you yeah. are practicing as a teacher also right now? Yeah, I'm a Mentoring teacher by students? profession. Yes. That's lovely. That's lovely. Yeah. अच्छा लगता है ना, मतलब टीचर के साथ बात करना. जैसे गुरु तो गुरु ही होता है apparently. 100%, 100%. That's so true. If you don't have a teacher or a mentor in life, you are shadowed. You are in dark. You don't have the light. So teacher is always a guiding light. We all Somebody have who shows us the path. 100%. आज लगता है मतलब if I talk about myself, I graduated from a very good university in my college, my MBA, my graduation, my schooling. तो अब जब वो corporate वाला time आता है ना, तो समझ आता है कि यार teachers की क्या importance थी. We had the set guidelines that हमें क्या करना है life में. And right now we are doing our part in our career, but still एक वो होता है ना कि कोई path दिखा दे, 100%, कोई कुछ बता 100%. दे तो better है. 100%. That guiding light is always there. Absolutely. That's so lovely to have you here, ma'am, once Thank again. you. तो जैसे कई चीज़ें तो बहुत कॉमन थी, जैसे आपने बात करी कि टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो, बट एक चीज़ थोड़ी सी अनकॉमन थी, दैट शैडो वर्क. Yeah, I said shadow work. शैडो वर्क. Yeah. तो वो व्हाट इज शैडो वर्क, इफ आई मे आस्क? Sure. So, shadow work is basically the work that we work around the shadowed parts of ourselves. Yeah. To be more precise, when you're walking in the dark, there's a light from behind. You see a shadow of yours. How does it look? Dark, ugly. So, that's what I want to touch upon today. द अनटच्ड पार्ट बेसिकली, जिसके बारे में कोई 100%. सोचता नहीं है. सोचना चाहता नहीं है. सोचना चाहता नहीं है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना. कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि उसके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता है. फियर है उसको लेकर. और वो इतनी बुरे तरीके से बिठा दिया गया है कि उसको सोचेंगे भी तो उसके साथ एक थॉट जुड़ा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. एंड यही चल रहा है ऑल थ्रू आउट. हम यही चलाते आ रहे हैं. यू नो व्हाट सबकॉन्शियस इज. सबकॉन्शियस इज एग्जैक्टली
इट अंडरस्टैंड्स हाउ यू फील. हम्म, तो हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि उसको फीलिंग दे दी गई है कि किसी भी शैडोड पार्ट को टच ना करना, तो अच्छा. इसलिए हम करना ही नहीं चाहते उसे. So basically, these are a few things about which people are not talking or not willing to talk. They don't know about it. Like what? If I ask about shadow, परछाई, right? हम सबकी एक परछाई है. हम जब एक वर्ल्ड में स्टेप इन करते हैं तो हम उस परछाई के साथ स्टेप इन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. ओके, सपोज अगर आप जहाँ पर भी जाते हो या आप किसी से मिलते हो या आप कोई काम करते हो, अगर आप वहाँ जाओ एंगर को लेके अपने अंदर, डू यू थिंक पीपल विल एक्सेप्ट यू? No. दे विल किक यू आउट. यू गो ऑन योर वर्क, यू शो योर एंगर, दे लाइक गो, मत रहो यहाँ पर. बट वहीं पर आपका कितना भी मूड खराब है, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, यूर लाइक आपने कंडीशन कर रखा है, रीवायरिंग हो रखी है ब्रेन की कि जैसे ही घर से बाहर जाएंगे हंसते हुए जाना है. एक मास्क पहन लेते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच के हम अपनी रियल लाइफ इमोशंस को इग्नोर करते हैं. आप ये कहना चाह रहे हो? तो वो जो रियल लाइफ और इमोशन है जो उस मास्क के एग्जैक्टली पीछे है, दैट इज योर शैडो. Okay, I was mistaking it as the real shadow, but now I get it that एक वो जो lost part है हमारे अंदर, you are willing to touch that. लॉस्ट भी नहीं है आशिक, खो दिया है क्योंकि उसकी अवेयरनेस किसी ने दिया नहीं, एजुकेशन नहीं दिया ना. हम लोग बड़े हुए हैं. यू रिमेंबर व्हेन यू वर अ किड, थिंक ऑफ दैट टाइम व्हेन यू वर लाइक क्राइंग. व्हाट डिड योर मॉम से टू यू? मत रो बेटा, तू स्ट्रांग है. देयर यू गो, चुप हो जाओ, रो मत. नाउ ऑन द कॉन्ट्रास्ट, इफ यू सी, सपोज अ वुमन हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, व्हाट डू द पीपल टेल हर? That let your emotions get out. मतलब There रो you- आप. There you go. Then why this contrast? You see? कितना ब्यूटिफुल पार्ट है जहाँ पे कम्युनिटी एक विमेन को बोल रही है कि रो, टेक आउट योर इमोशंस. व्हाई? बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू अ ग्रीफ. बट वहीं एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है लेकिन माँ उसको चुप करा दे रही है. तो हमारी कंडीशनिंग, जब हम छोटे हैं हमें तभी चुप करा दिया जाता है, हमें रोने नहीं दिया जाता क्योंकि एक मदर उस पेन को फील नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि पेन फील नहीं करना है. Basically, people are running from feeling that pain. ऑफ कोर्स. एंड अब इस पेन के बहुत सारे नाम हैं. अब उस पेन का नाम है ग्रीफ, उस पेन का नाम है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यू कॉल इट एनीथिंग, सॉरो. अब उसको नंब करे जा रहे हैं. My like first question to you is, जैसे आपने बताया कि हम सब लोगों के कुछ इमोशंस हैं जिनको कंप्रेस कर दिया जाता है बिकॉज दैट्स हाउ द सोसाइटी हैज बीन ट्रेनिंग अस. तो आज की लाइफ में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंग्जाइटी, डिप्रेशन. लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस इन डेली टू डेली लाइफ इग्नोर आवर इमोशंस. ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि सब लोग ही करते हैं. लाइक जो आपने बताया कि ये चुप हो जा सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है, घर घर की कहानी. ऑफ कोर्स. तो आज के टाइम में जो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ने वाले लोग हैं, इज दिस बिकॉज ऑफ दिस, समवेयर रिलेटेड टू दिस? यस. प्लीज अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ एंग्जाइटी टू डिप्रेशन. ठीक है, एक थॉट है जो आपके दिमाग में आया एंड देन आपने उसको सच मान लिया. एक थॉट, मतलब सोचो कि हम कितने स्लेव हैं अपने माइंड के, कि माइंड ने आपको एक थॉट दिया कि सोच अगर ऐसा हो गया तो, and then there is somebody inside you who trusts that. हाँ ऐसा हो गया तो, and then ऐसा हो गया से multiple thoughts pile up होते गए and then एक outcome पे आप पहुंच गए जहाँ पे आपने उसको सच मान लिया. ऐसा हो गया. There you begin, you step into the journey of depression because you easily believed कि हाँ ऐसा हो जाएगा. बट अगर हम फर्स्ट प्लेस पे अपने इमोशंस को वेंट आउट कर लें तो ये ओवर एग्जैजरेशन ऑफ थॉट्स नहीं होगी. वेंट आउट ही तो नहीं करना आ रहा है ना, वही वेंट आउट ही तो नहीं करना सिखाया गया. यू सी, दैट्स व्हाट आई सेड कि एक बच्चे को चुप करा दिया कि तू चुप हो जा, उसको वेंट आउट करने ही नहीं दिया. एक बच्चा है, वो बहुत जोर से गिरा है, उसको दर्द हो रही है, उस पर फटाफट मरहम लगा दिया, उस पर टेप लगा दिया, उसको दबा दिया. उसको कैसे पता चलेगा कि दर्द कैसे फील होता है?
कोई चीज़ लगती है, खरोच होती है, तो एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है. उस पेन को फील करना अगर हमारी टेंडर एज में हमें समझ आ जाए. मैं ये नहीं बोल रही कि एक मदर एक बच्चे को छोड़ दे उस टाइम पे रोता हुआ, नहीं. If a child is crying and if I'm a mother, I'm standing there, holding. Yeah, that's how a pain feels. That's how you feel the pain. Makes sense. You know what I mean? And then when the child is done crying, and then we ask, what can I do to make you feel better? Now you've felt it, you've vent it out, now there's a space for you to receive healing. You know what I mean? Yeah, That's what I mean. I get that. तो आज के टाइम में तो और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं दैट एक आउट ऑफ लव पेरेंट्स बोल देंगे कि नहीं नहीं, अपने बच्चे का दर्द चुप कराने के लिए उसके ऊपर हम मरहम लगा देते हैं या कुछ करते हैं. आप कह रहे हो कि वो चीज़ ठीक है, वो तो करना ही है, एज अ पार्ट ऑफ दैट इज़ अ क्योर, है ना. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपको कन्वर्सेट करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. 100%. Because how a parent communicates to a child becomes either the inner lover or inner critic. ये एक archetypes हैं. Okay? Human archetypes हैं. So जैसा माँ बाप अपने बच्चे से बात करते हैं, वो डिसाइड करता है उसके लेटर ईयर्स में कि वो बच्चा अपने आप से प्यार करेगा या वो अपने आप को एक क्रिटिक की नज़र से देखेगा. And this is something very important because I talk to a lot of people, I interact with a lot of people. तो अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि यूथ में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं. These people are that, like, I'm not talking about any specific gender, but I think a lot of people think कि यार मेरे में ही कुछ कमी है. 100%. And I think this is because कि अपने emotions को उन्हें कभी lent out करने ही नहीं दिया गया, या फिर Yeah. that conversation from the guides or the mentors or the parents or the जो भी उनकी लाइफ में जिसको भी वो अपना मेंटर मानते हैं या बड़ा मानते हैं, उनकी साइड से वो कम्युनिकेशन मिसिंग है. उनको स्ट्रांग बनने पे इतना फोकस कर दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, स्ट्रांग बनो. वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो अपनी वीकनेस कभी दिखा ही नहीं पाते. एंड देन आई थिंक स्टेप्स सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, sabotaging, completely sabotaging. But करे भी क्या ना. अब चलो let's talk about the parents for example. वो भी क्या करें? जनरेशन वाइज जनरेशन यही तो ट्रांसफर होता आ रहा है ना. मतलब मेरी मॉम को उनकी मॉम ने सिखाया होगा ऐसे नहीं करना, सो शी गिव इट टू मी until I thought no, it's not resonating with me. I need to change it. और अगर शायद मैं उस चीज़ पे क्लिक नहीं करती तो मैं भी शायद वही पास ऑन करती further. So I am not blaming any parenting and I have no grudge towards it, but then वही बात है कि अवेयरनेस मिसिंग थी. लेकिन ब्यूटिफुल पार्ट ये है कि अवेयरनेस आ रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली. 100%. अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये अवेयरनेस सपोज इट हैज रीच टू मल्टीपल पीपल, बट इट इज रीचिंग थैंक्स टू कोविड कि उस टाइम पे सबके मास्क उतर गए. यू मस्ट हैव सीन एज पर द सर्वे इतने डिवोर्सेस कोविड से पहले वाले ईयर्स में नहीं हुए जितने कोविड में हुए. क्यों? बिकॉज इट्स लाइक पूरी एल्केमी, पूरी यूनिवर्स, डिवाइन फोर्स ने सबको सबके साथ बिठा दिया टू फेस द रियल सेल्फ. अब जब रियल सेल्फ देखा तो समझ आया, ओह दिस पर्सन हैज एंगर इश्यूज, ओह ये कितना फ्रस्ट्रेट होता है, ओह यार ये कितना रोती है. अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने का एक और चांस दे दिया कोविड ने. अब जो परफॉर्मेंस से एडजस्ट नहीं कर पाए या जिनको वो प्रॉब्लमैटिक लग रहा था कि अरे ये वैसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा जैसे पहले कर रहा था, वो लोग अलग हो गए. और कुछ लोगों ने इसको एल्केमाइज करके एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया. आई हैव सीन दैट ऑल्सो. अब जिन्होंने बॉन्ड बनाया वो बहुत ही कम रेशो था, क्योंकि वो लोग थे जो हीलर्स के पास चले गए, गुड हीलर्स आई वुड से रादर, या वो लोग थे जो काउंसलर्स के पास चले गए, या वो लोग थे जो थेरेपीज ले रहे थे, या ये वो लोग थे जो एक्नॉलेज कर रहे थे कि वी ऑल आर नॉट परफेक्ट एंड वी ऑल हैव दैट डार्क साइड ऑफ अस, दैट शैडो साइड ऑफ अस, द शैडो साइड ऑफ अस. सपोज एक कपल है आशीम, अब एक कपल है जिसकी आपस में एकदम लड़ाई हो रही है, तुम तो पहले ऐसा करते थे, तुम तो पहले वैसा करते थे, तुम ये तुम वो, अभी क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया. रियल साइड सामने आ रही है एंड दे बोथ लेफ्ट ईच अदर बिकॉज एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस चीज़ की. अवेयरनेस तो आ गई कि इसमें ये शैडो इमोशंस हैं,
लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान को लेकर। लेकिन वहीं पे एक कपल है who just got married, for example. It's been a year, but they were in a courtship, and now they're seeing the shadowed emotions of each other, and they both say ki, let's accept that, we have it, but we are not able to cope up also. But then there's an intention of love. Let's alchemize it. What can we do about it? To change it. Not changing it. In a way, when I say alchemizing, basically, it's just that how do you change pain to the pleasure? How do you change a sorrow to love? How do you change frustration to the calm? Okay? So, हम alchemize कर रहे हैं उसको transmute करने के लिए, मतलब खत्म नहीं कर रहे हैं. I can't end an anger from you or from myself. कभी ना कभी तो आएगा. But मैं उसको alchemize कैसे कर रही हूँ कि ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है. So I tell my partner or I tell my mother, I tell my father कि I'm into the state right now. I don't want to talk. And I want to be with my anger. This is what is not taught. Neither in the schools, nor by the parents, nor it is acknowledged. Accepted ही नहीं है. Society accept ही नहीं करती ना. तो ये दो चीजें हैं, self analysis and to be with your emotions and realize. Absolutely. It starts with the awareness. हम सबको पता है ना कि जब पेट दर्द होता है तो पेट यहाँ है और दर्द भी यहाँ हो रहा है और फिर हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कैसे, मैंने क्या खाया था कि मेरा पेट दर्द हो रहा है. डू वी डू दैट? सेम विद द इमोशंस. मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके, अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं. मेरी मदर ने मुझे बोला गुस्सा आएगा तो पानी पी लो. अच्छा पानी पी लिया, एक लेवल तक काम करेगा, उसके बाद ग्लास ही फेंक दूंगा मैं तो. दिस इज हाउ. अब उस एंगर को कि वो आपको हार्म ना करे या वो किसी और को हार्म ना करे, इसीलिए हमें उसे अल्केमाइज करने की जरूरत है. जहां आपको ग्लास फेंकने का मन कर रहा है वहां कुछ तो फेंकना है. और वो कब तक ही कंप्रेस करेंगे, कभी तो बाहर आएगा. तो उसको बाहर निकालो ना. कैसे निकालोगे? इस तरीके से कि वो आपको भी हार्म ना करे या किसी और को भी हार्म ना करे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एंगर, अवेयरनेस आ रही है, ओके आई एम इन एंगर, सो आई टेल एवरीबॉडी कि मैं अभी गुस्से में हूँ, मुझे इस टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है. एंड नाउ आई गेट इनटू द एक्नॉलेजमेंट, मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है. यू रिफ्लेक्ट बैक. जैसे कि मेरा पेट दर्द क्यों हो रहा है, यू टॉक टू योरसेल्फ. आपको पेट दर्द हो रहा है, मैंने क्या खाया था, ये कहाँ से आ रहा है गुस्सा. द मोमेंट आपने एंगर के पीछे चला गया, एक्नॉलेजमेंट चला गया, आपने एक स्टेप ऑलरेडी पीछे ले लिया एंगर से. एंगर -1. अब एक्नॉलेजमेंट से चले जाओ रेजोल्यूशन के पास. मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा एंगर भी रिलीज हो जाए और मैं काम में आ जाऊं, बिना एंगर को सप्रेस करे, बिना किसी डाउन रेगुलेटेड शैडो इमोशन को सप्रेस करे. मैं ऐसा क्या करूं मेरा एंगर भी रिलीज हो जाए, सप्रेस भी ना हो, मुझे हार्म भी ना हो, किसी और को हार्म भी ना हो और मैं काम हो जाऊं. कितना ब्यूटीफुल है ये. There's a beauty in it. Same for the all emotions. For example, आपने बोला मुझे ग्लास तोड़ने का मन कर रहा है, ठीक है. इंटेंसिटी, क्योंकि इसके पीछे क्या है, इंटेंसिटी है कि गुस्सा निकालना है. मैं आपको उसी मोमेंट पे इफ आई आस्क यू कि आशिम मैं आपको एक टॉवल देती हूँ, इसको स्क्वीज कर और इसमें सारा का सारा एंगर निकाल, निकल गई इंटेंसिटी. आप -2 ऑलरेडी पीछे चले गए. And that's how I think I should, मतलब we should learn this कि हम अपने इमोशंस को कैसे एक मतलब हेल्दी वे में हैंडल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. जो मैंने आपको तरीका बताया, बहुत तरीके हैं इस दुनिया में. जो मैंने बताया इसको सोमैटिक रिलीज बोलते हैं, जहाँ पे हम बॉडी की इंटेंसिटी को यूज करते हैं टू टेक इट आउट. अब कुछ इमोशंस ऐसे हैं जैसे कि सॉरो, ग्रीफ. अच्छा एक बात और है, ग्रीफ ही रूट है सारे इमोशंस का. आप एंगर में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, जो भी आप वो इमोशन सोच लो जिसमें इंटेंसिटी है, वो डाउन रेगुलेट करेगा ग्रीफ पे. और एट द एंड जैसे ही आप रो दिए, जहां आपने रिलीज कर दिया, वहीं आप काम हो जाओगे. कहने का मतलब है कि वो जो बैगेज है उसको थोड़ा सा रिलीज करने का, थोड़ा नहीं पूरा. अच्छा, मतलब उसको पूरा रिलीज करने का तरीका यही है कि मैं अपने इमोशंस को वेंट आउट करूं, चाहे वो मैं ग्रीफ से करूं, चाहे वो मैं कोई भी और, आपने बताया से बहुत सारे वेज है वो यूज करके करूं. बेसिकली इट्स मोर अबाउट एक्नॉलेजिंग आवर ओन इमोशंस बाय आवरसेल्फ एंड देन हैविंग अ फीलिंग. मतलब हमें ये चीज सिखाई जाती है, बेटा गुस्सा मत कर, बेटा रो मत. जैसी
That's the thing. No, now Conditioning हो I गई get ना? that. I get that. कि accepting our emotions is very necessary. But मैम out of interest मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा because Sure. I'm really enjoying having this discussion. Thank you. तो like somebody, like this is not my case, making it clear. Just an example. Somebody hurts somebody by their actions. For example, if two people are in a relationship, तो एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट कर देता है अपने एक्शंस से, चाहे वो थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया, चाहे उसने कुछ Yeah. करा, कोई उसकी हैबिट खराब है, चाहे उसने एग्रेशन ज़्यादा दिखा दिया, या उसने फॉर एग्जाम्पल उसको ब्रेकअप करने के लिए बोल दिया या सेपरेट होने के लिए बोल दिया. Yeah. हाउ वुड समबडी हैंडल दोज इमोशंस इन अ फ्रूटफुल वे? Very beautiful question because it's a question of the current generation right now. That's Thank exactly you for why asking I this. asked it. Thank you for asking this. It's a very beautiful thing. So let's see this way. दो choices हैं. या तो आप उस इंसान को चेज करते रहो टू द लेवल जहाँ पे आपको ये रियलाइज हो जाए कि इट्स डन, एंड देन यू सिट देयर एंड देन यू क्राई अबाउट इट, और यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग, देयर इज अ पार्ट ऑफ मी विच इज अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दैट. What's that part? Touch that part and heal that part. Now, disclaimer. Most of the relationships are the reflections of how our parents had been with us. Remember that always. Mhm. Let's talk about a woman. Example A. A woman, she had a father. So basically एक लड़की की जिंदगी में उसका पहला मेल उसके फादर होता है. सपोज अगर वो ही इमोशनली अनअवेलेबल होगा तो बच्ची को पता नहीं होगा कि व्हाट इज लव. ओके, अब वो शायद हो सकते हैं कि वो अवेलेबल हो मटेरियलिस्टिकली, उसको स्कूलिंग करवा दिया, उस पर पैसे लगा दिए, बट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द वाटर. इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इज वाटर. प्यार ही फ्लो कर सकता है, ये प्यार से चलती है. जो भी आप, emotions. absolutely. We read cups in tarot. Cups is all about emotions. Yeah. So water है, पूरा water का body है. Hmm. उसको वो प्यार नहीं मिला, वो क्या करेगी? बाहर ढूंढेगी ना. और जब बाहर से चला जाएगा तो वो परेशान होगी. अब उसका वो जो इमोशनली अनअवेलेबल फादर है, अब वो स्कूल जा रही है, वो देख रही है कि उसका एक फ्रेंड के फादर उसको बड़ा प्यार कर रहे हैं. शी इज सेइंग कि कुछ तो मिसिंग है मेरी जिंदगी में. अब वो जाके घर पे कम्युनिकेट करती है अपने फादर को, देखो वो तो पीटीएम में अपने पापा को लेके आती है, आप नहीं जाते, क्योंकि उसने रिलेट करा कि ओके मे बी द लव इज दैट योर फादर इज गोइंग, बट उसके पीछे एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशन ये है कि वो ये सोचती है कि पीटीएम में जाने से मेरे पापा का कंसर्न दिखेगा. तो कंसर्न उसके लिए क्या हो गया? प्यार. कंसर्न इज लव. उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं गए. अब वो क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी उस चीज को. आइदर वो एक्सेप्ट करेगी या फिर वो बाहर ढूंढेगी. अब वो बाहर ढूंढेगी तो जब वो बड़ी होगी तो वो ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगी जो इमोशनली अनअवेलेबल है. अब इनिशियली तो उसको वो इतनी सारी केयर कंसर्न दिखाएगा, एंड जैसे ही वो उसके साथ जुड़ जाएगी, इमोशनली कनेक्ट, क्योंकि उसको तो प्यार मिल गया, अब जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगी, दैट पर्सन विल अबैंडन immediately. That's why some girls मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए. Gen Z के कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग तो सिर्फ रेड फ्लैग्स से अट्रैक्ट होते हैं. सो ये उसके पीछे रीजन है कि वो रेड फ्लैग ट्रीटमेंट उन्होंने पहले भी देखा है. Absolutely. So that's why it's attracting to them. अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? ब्रेन उस chaos को सिमिलैरिटी समझता है, सबकॉन्शियस फीलिंग समझता है, उसको शब्द समझ नहीं आते. नाउ व्हेन सपोज यही जो आप बात कर रहे हो जेन ज़ी जनरेशन की, सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइज, बट देन दिस इज सो ट्रू, क्योंकि ये हमारे साथ भी है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जनरेशन एक्चुअली, बट ब्रेन को क्या लगता है ना आशिम की ये क्योस बड़ा सिमिलर है, तो उसी क्योस को हम अट्रैक्ट करते रहते हैं. अब ये क्योस आपको आपका पार्टनर दे देगा, एक उबर ड्राइवर दे देगा, घर में जो आपको स्विगी लेके आता है वो दे देगा, वो आपसे लड़ पड़ेगा, वो आपको उल्टा बोल देगा. तो करना क्या है? जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, वो खुद को देना. वो कैसे आएगा? जब आप देखोगे कि मेरी लाइफ में मिसिंग क्या है और वो मिसिंग होने का इमोशन क्या है, क्या शैडो है उसके पीछे, एंड देन उसको फील कर लेना. जो इंटेंसिटी आ रही है उसको आने देना. हाँ, अकेले में करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इनिशियली यू वुड नीड अ थेरेपिस्ट, बट टू स्टार्ट विद आई कैन टेल यू मेनी वेज ऑफ दैट. Got it. बट एक अगर मैं आपसे मैसेज पूछना चाहूँ, बिकॉज यू हैव बीन मेंटरिंग अ लॉट ऑफ पीपल
and I think they all of them are doing very good in their life now, much more settled, much more clarity है उन लोगों की ज़िंदगी में. एक मैसेज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि प्रियंका मैम, आज की यूथ में मेरे पास या फिर बहुत लोगों के पास ऐसे केसेस आते हैं, हमारे दोस्तों में, हमारे साथ में नॉर्मल लोगों के पास ऐसे केसेस होते हैं कि लोग रोते हैं, लोग परेशान होते हैं किसी के लिए, that the person is not treating them in the same manner, or I think my expectations are not getting met. तो उस इमोशन से ये सारे लोग, मैं एक स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, Of course. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सिमिलर केसेस who have problems in relationships or making relationships work. उन लोगों को अपने साथ कैसे डील करना चाहिए, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? Wow. Wow. This is such a beautiful question. Okay. It might sound very rude. It might sound very hurting. But the way you treat yourself is how the world treats you. यूनिवर्स का लॉ है आशी. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा आप खुद के साथ व्यवहार करते हो वैसा दुनिया आपके साथ व्यवहार करती है. और आप जैसा अपने साथ व्यवहार करते हो, मैंने पहले बोला कि या तो आप अपने इनर लवर हो या आप अपने इनर क्रिटिक हो. और आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी इनर क्रिटिक से इनर लवर बनने की. सो मेरा मैसेज यही है, nobody can break you till the time you love yourself. absolutely. Love is the greatest power of this world. Why did Dwapar Yug came? Why did Radha Krishna came? Their whole intention of going through the journey of a human was to teach people love. And the love is yourself, you. It's built in you. आपका human body बनी है ऐसी है, प्यार से ही बनी है वो. आप ही उसको ट्रीट नहीं कर रहे. मेरा मैसेज यही है कि आप खुद को पहले बेटर ट्रीट करना शुरू करो. जितना आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गिव दैट इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ? राइट. व्हाट डू वी डू इन द रिलेशनशिप्स? कोई मिला, वी स्टार्ट टू परफॉर्म, वी गेट इनटू द पीपल प्लीजिंग, वी गिव देम गिफ्ट्स. बट आई आस्क यू, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गिफ्टेड योरसेल्फ द सेम थिंग दैट यू गिफ्टेड टू दैट पर्सन? दिमाग तो है, इमोशन भी है. जो इमोशन उसको लगाने में दिया, मतलब इमोशन एग्जिस्ट कर दे. वेयर इज इट फॉर योरसेल्फ? इट्स मोर लाइक डोंट फॉरगेट योर आइडेंटिटी. सी, इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज, सामने वाले को प्यार करना मेरे हिसाब से इज योर ड्यूटी. सामने वाले को लव्ड फील कराना इज नॉट अ ड्यूटी, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम विद इन. एब्सोल्युटली, देयर यू गो. वो अंदर से आता है. हमको उसको निभाने की जरूरत नहीं है. जिसके साथ होगा आपका खुद एफर्ट्स आ जाएगा 100%. लेकिन खुद को प्रायोरिटी नंबर 1 रखना, या मैं कह रहा हूँ खुद को इक्वल प्रायोरिटी भी देना इंपॉर्टेंट है. कि खुद को ना भूलें, मैंडेटरी. खुद को अपने साथ रखें. मैंडेटरी. किसी के केस में खुद को पीछे छोड़कर आगे वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड 100% लेगा. 100% लेगा. अगर आप एक चीज नोटिस करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम पिकिंग अप दीज एग्जांपल्स. आई डोंट नो हाउ इट इज लैंडिंग बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट. शक्ति और शिवा जब अलग थे, ओके, तो शक्ति ने उस टाइम तप किया शिव बनने के लिए. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर? नो. So Ardhanarishwar is like Shiva and Shakti in one body. We all have that. So the masculine, feminine, we have that. कैसे तो हम, for example, if I ask you to do certain works that females do, you'll be able to do it. Yeah. The emotions that female have, you'll be able to have that. If I talk about the work that the men do, I can do it. The emotions that men have, like the masculinity, or maybe you can talk about how they control things, how powerful they are. I also have that. So we all have everything. एक बॉडी भी अर्धनारीश्वर की बॉडी है, वो वहीं से आ रहा है. तो शक्ति ने शिवा को पाने के लिए शिवा को चेस कभी नहीं किया. शिवा से दूर रहकर वो खुद शिवा बनी. That's when Shiva came to receive her and married her. When we are love, we attract love. मैं ही प्यार हूं. अब प्यार की परिभाषा आप डिफाइन करो, फिर आपकी लव लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, माई लव लैंग्वेज इज when I am with a partner, or I am with my mother, I am with my father, I am with my brothers. So when I make them laugh, seeing them laugh makes me feel loved. तो मैं अपना भला कर रही हूँ पहले. That mental satisfaction is there. Yes. मतलब मेरे लिए प्यार क्या है, मैं कैसे लव फील करूंगी? सो मेरा क्वेश्चन मेरा खुद से यही है, जो मैसेज वी वर गिविंग टू द पीपल अराउंड, दैट मैं कैसे लव्ड फील कर सकती हूँ? आई आस्क माई सेल्फ. सो आई हैव अ लव लैंग्वेज. व्हेन पीपल लाफ एंड आई मेक देम लाफ, seeing them happy, there's a heart opening.
there's something happen in the body that makes me feel, wow, this is so beautiful. यही लाइफ चाहिए. अब उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ना. मैं उनको प्लीज तो नहीं कर रही. So what you want from the world is what you have to give to yourself. You see how you want to feel loved. Right. ये एजेंडा होना चाहिए. अब उसके नीचे चाहे ग्रीफ फील करना पड़े, एंगर फील करना पड़े, जो भी शैडोड इमोशंस हैं वो फील करना पड़े, you have to feel that. You see You have how to go back to that point and feel that where that thread has been broken. bang on. और उसको फिर जोड़ना आपके हाथ में है. Yeah. 100% हमेशा रहेगा आपके हाथ में, हमेशा. And मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी. अगर हम लोग अपने शैडो के ऊपर स्टार्टिंग में ही वर्क कर ले तो आई थिंक वी कैन avoid a lot of addictions, avoid a lot Oh of my things. God, 100%. So you see that, sorry to pick this up, but the youth drowned in drugs. Yeah, definitely. And I've been mentoring a lot of people where it feels so sad to even talk about it. My heart breaks to see these people into that situation. And it's very, very sad. मतलब इतना ये मैं इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन फील कर पा रही हूँ अपनी बॉडी में जब मैं उन लोग को देखती हूँ उस कंडीशन में, जब वो मेरे सामने स्क्रीन पर होते हैं. सो मैं इंटरनली ऐसा मन करता है इनको उठाऊं, गले से लगाऊं और बोलूं कि इट्स ओके, इट्स फाइन, बट यू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ इट. हम एडिक्शन तक पहुंच कैसे गए? कुछ तो नंब हो रहा है और नंब करना सिखाया गया. अब जब नंब करना हमारे हाथ से बाहर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम हेल्प लेते हैं. अब या तो आप हेल्प ले लो थेरेपिस्ट की कि मैं कैसे बाहर निकलूं इससे, या फिर आप उसको कंटिन्यू करो नंब करने के लिए. कितना नंब करोगे? बट वो अवेयरनेस ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि वो नंब हो रहा है. आई एम नॉट हैविंग एनी रियलाइजेशन दैट माय इमोशंस आर गेटिंग नंब. सो फॉर दैट आई थिंक पहले ये सोचना जरूरी है कि क्राइंग इज ओके. लाइक द गर्ल्स और द पीपल आर टॉट कि लड़के नहीं रोते. ऐसा नहीं होता, लड़के रोते हैं. एंड ऐसा है कि मतलब गर्ल्स डू एक्सेप्ट दिस फैक्ट वेरी ओपनली कि, या विमेन, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट गर्ल्स, कि हमारा पार्टनर लड़का है, ऑफ कोर्स मोस्टली केसेस में लड़का है, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होगा ज़्यादा. क्यों? व्हाई? सिखाया ही नहीं गया. Why can't he talk? Like, see, I'll be very honest about this thing. Yeah. कि एक communication और एक clarity in expressing your emotions gender देखकर नहीं आती है. Oh my God, that's so true. अगर so true. मतलब मैं आपको बताऊं मेरा perspective, I might be very wrong in this thing, and see, if we talk about that alpha male वाली चीज, वो सब में होती है. Yeah. अब अगर आप मेरे सामने मेरी मदर की या मेरी पार्टनर की इंसल्ट करोगे, वो एग्रेशन मुझ में आएगा. Yeah. That is inbuilt. But that's love. That's coming out of love. Yeah. But this doesn't mean कि अगर मैं अपनी expressiveness को नहीं रख रहा हूँ and you are feeling bad about anything, you expect me to come and hug you. Like I'm talking about my partner, ठीक है? Yeah. कि like अगर मेरी पार्टनर मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं जाऊँगा और जाकर उसको हग करके शांत करूँगा, whereas मैं नहीं जाता, मैं वहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल हूँ, तो लोग अपने आप को ही जवाब दे देते हैं कि यार लड़का है, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते लड़के इतने. We are born like that. That's not true. I think. Yeah, true that. कि मेरा मैम इस चीज़ में पर्सपेक्टिव ये है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोनों एंड से. एंड कम्युनिकेशन या एक्सप्रेसिवनेस अगर ये लड़की के केस में भी होगा कि मतलब मैं देखता हूँ कि मेरी पार्टनर रो रही है, तो बोलेंगे लड़कियाँ रोती हैं. दैट्स अ ह्यूमन मेड थिंग. दैट्स अ मिथ. क्यों लड़कियाँ रोती हैं भाई? तुम एक बार फील करो ना कि वो क्यों रो रही है. Why is she crying? And then I think eliminating that fact is your win. देखो मेरे हिसाब से conflict of opinion किसी में भी हो सकता है. Of course. And that's a part of a relationship. 100%. But मतलब मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है आपको मेन इस पॉडकास्ट पे बुलाने का, because you have been mentoring people to teach them the right way to deal with your emotions and your problems. 100%. And for that only I wanted to call you over here to tell the youth कि अगर तुम रो रहे हो किसी के चक्कर में तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, या अगर तुम्हारी गलती है भी तो उस गिल्ट फैक्टर को ठीक करो rather than chasing that person. If that person is right for you, I think that he would reach you on his own. Bang on. Bang on. Let's talk about guilt. Yeah. Shadowed emotion है. हमें नहीं पता गिल्ट को कैसे फील करते हैं. बड़ी गंदी फीलिंग होती है गिल्ट की. I'm telling you on the face, बड़ी गंदी फीलिंग है गिल्ट की ना. अब गिल्ट को सप्रेस करने के लिए हम शायद
ड्रिंक करेंगे, अल्कोहलिक बन जाएंगे, स्मोक अराउंड करेंगे, वॉट एवर इट इज, जो भी कर सकते हो आप. मे बी यूल गो आउट विद अदर पीपल, यूल डेट समबडी एल्स, लेकिन ये गिल्ट वापस आएगा क्योंकि आपने खुद को अबैंडन कर दिया एक तरह से. वो गिल्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज सिट विद मी. अच्छा, फिर आपने इग्नोर कर दिया, सेल्फ अबैंडनमेंट हो गई. अब ये गिल्ट क्या करेगा, बॉडी में बढ़ेगा धीरे धीरे. ये ग्लास ऑफ वाटर है, मैं कितना भर सकती हूँ इसके अंदर, जितनी इसकी कैपेसिटी है ना. तो बॉडी की भी तो एक कैपेसिटी है ना. आप उसको नंब करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बॉडी में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है. अब वो क्या करेगा, लीक करेगा पानी, है ना, पानी लीक करेगा. अब ये गिल्ट फ्लो करेगा, अब ये गिल्ट आएगा. ऐसी चीजें आपके लिए बाहर क्रिएट होंगी, सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर आप ऐसी हरकतें करोगे या आप ऐसी गलतियां करोगे जहां पे गिल्ट वापस वही सामने आएगा. अब गिल्ट आएगा बड़ी इंटेंसिटी से, आपने फिर उसको इग्नोर कर दिया बिकॉज सिखाया ही वही गया, इग्नोर. बेसिकली वो चीज़ पाइल अप होती जा रही है और वो जब पाइल अप होकर ओवरफ्लो करेगी तो वो आपको परेशान करेगा. आप उसे कब तक इग्नोर कर लोगे? तब तक, जब तक आप उसे तब तक इग्नोर कर सकते हो जब तक वो बड़ा एक क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर बन के आपके सामने नहीं आ रहा. और उस टाइम तक वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा. बिल्कुल बन जाएगा. अब बहुत लोग ऐसे हैं कि वो उस टाइम पे एनालाइज करते हैं कि करें क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वहां तक भी. जब वो पहुंच गया, जब वो इतना था तब भी नहीं पता था क्या करना है, जब वो इतना पहुंच गया तब भी नहीं पता था. सो बेसिकली करना क्या, देखो अंडरस्टैंड, ये जो इमोशंस है ना, ये हमें बताते हैं, हमारी बॉडी बताती है. बस प्रॉब्लम ये कि हम सुनना नहीं चाहते हैं. हम जानते हैं सुनना, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं. जस्ट लाइक कोई भी बॉडी में पेन हुआ, आपको पता है ना ये पेन हो रहा है, बॉडी बता रही है ना, आप इग्नोर कर दो, फिर क्या होएगा, पेन बढ़ेगा. फिर वो एक दिन इंजरी बन जाएगी, फिर वो इंजरी बन जाएगी तो सर्जरी होएगी, फिर सर्जरी ऐसे ही हो रहा है. तो आपकी बॉडी बताएगी. आई एम टेलिंग यू, हमारी बॉडी इमोशन स्टोर करती है. So ma'am, in our entire conversation we have talked about all these emotions and we've been ignoring them, compressing them, basically shadowing them. एक shadowed emotion हम अपने अंदर create कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. Sooner और later वो एक intensity अपनी बढ़ाएगा, शायद हमारी personality का एक trait बन जाए. एक आदमी अपने emotions को ignore करता जाएगा, वो aggression उसमें बढ़ता जाएगा and he'll be called a aggressive person. 100%. है ना, उसकी एक notification बन जाएगी कि आशिफ गुस्से वाला है ना, एग्जाम्पल. तो अब मैं आपको जैसे लाइक यू नो आई हैव कॉल्ड यू मेजरली टू आस्क मैम हाउ डू यू मास्टर योर इमोशंस सो वेल. सो आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट डिफरेंट इमोशंस. तो आप मुझे बताना कि हाउ शुड द यूथ और इवन द पीपल हु आर यू नो इन देयर अर्ली 40s 50s 60s, एज कॉन्स्टेंट नहीं है इस पे, हाउ शुड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मास्टर दीज इमोशंस एंड व्हाट कैन दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वो शैडो के ऊपर काम किस तरह से करे, क्या रियलाइज करने की जरूरत है एंड ये कैसे हो सकता है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दैट. सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद एग्रेशन. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, जिस वजह से लोग क्राइम्स करते हैं, गुस्से में कर दिया, कंट्रोल नहीं हुआ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, गुस्सा आया रिएक्शन दे दिया. मेजर झगड़े, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर डिवोर्सेस, मेजर ब्रेकअप्स, ये सारी चीज़ें एग्रेशन कहीं ना कहीं इनका एक हुआ है. तो हाउ कैन वी मास्टर आवर एग्रेशन? So basically aggression has a lot of intensity in general. And जब आप aggression में होते हो तो आपको ऐसा होता है कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, like your brain tricks you. It's like that. And but इतना प्यारा इमोशन है कि ये आपको, अगर इसको प्रोसेस कर लिया जाए, मतलब if you process your emotion, you can immediately reach to love. So before processing any emotion, you ask yourself, do I want to be here where I am? Okay. Question yourself. Yeah. Do I want to be, is this making me happy? Is it a very good emotion? Is this aggression helping me? If you get a yes. उस समय तो मैं ऐसे जोन में ही नहीं हूँ जब मुझे गुस्सा. अपना एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मुझे गुस्सा आ गया किसी चीज पे, I am not in that much sense that I question myself. So how to gain this much mental availability of myself कि मैं खुद से उस समय क्वेश्चन कर पाऊँ? Awareness. इतना तो पता है ना कि गुस्सा आ रहा है. हाँ. So you are into, इस बात को अपने आप को बोल दो कि मैं गुस्से में हूँ. ओके. और मुझे इस गुस्से का पता है कि इसके रेपोकशंस क्या हो सकते हैं. तो मैं पहले से ही सबको बोल देता हूँ कि ठीक है, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, इतने से इतने बजे तक मुझे परेशान मत करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या, आई एम जस्ट फीलिंग समथिंग एंड आई रियली वांट टू टेक इट आउट. You space out. You come to a personal space, okay? And treat yourself like a child. Okay. अगर अभी
छोटा आशिम गुस्से में होता, how would the father Ashim treat that aggressive Ashim? I ask you, what would you do if your child was very aggressive right now? What would you do to I would him? make him sit and talk that Bang on. what's exactly the problem. I'll not tell you not to do anything क्योंकि आपने बताया कि ignore नहीं करना. मैं बोलूँगा ठीक है, I acknowledge your anger, I acknowledge my anger, Yeah, but now what can be the best solution yeah. so that nothing You harms already you? spoke the solution. So you sit with yourself. You immediately come back to the room. आप खुद से पूछोगे, again one step back. मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कहाँ से? वही पेट दर्द हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है पेट दर्द? क्या खाया था? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? बिना उसको ये बोले या बिना उसको वो रास्ता दिखाए कोई सॉल्यूशन मत दो अपने आप को. वो रेडी नहीं है सुनने के लिए. सो बेसिकली ट्रीट योर सेल्फ एज एन इनर चाइल्ड. गुस्से में है वो और उसको पूछो अच्छा क्या हुआ है. Basically, what क्यों major हुआ? thing people are missing out that I have realized in this entire conversation is talking to themselves. खुद से बात करनी शुरू करने से बिल्कुल. बहुत चीजें बेटर होंगी. I think. 100%. तो आप जैसे आप खुद से पूछ लोगे ना कि क्या हुआ है, आपको आंसर आएगा एक. वो सॉफिन हो जाएगा. अंदर एक बच्चा है जो सॉफिन हो जाएगा. अब आप उससे पूछोगे अच्छा व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग टू टेक दिस आउट. वो बताएगा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ कर दूं. उस टाइम पे आपको सोमैटिक रिलीज हेल्प करेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर इमोशन इंटेंसिटी वाला इमोशन है. सो उस सिचुएशन में बहुत सारी सोमैटिक प्रैक्टिसेस होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक अ पिलो, ओके, यू कीप द पिलो ऑन योर माउथ एंड स्क्रीम लाउडर. नाउ यू कुड बी एट अ प्लेस जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रीम नहीं कर सकता. यू गो टू द वॉशरूम, कीप ऐसे हाथ रखो मुंह के ऊपर एंड डू अ साइलेंट स्क्रीम. इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे प्रेशर आएगा, आप इंटेंसिटी से अपना इमोशन निकालोगे, आप साइलेंटली स्क्रीम करोगे, आप इमीडिएटली रोने लग जाओगे. ट्राइड टेस्टेड. कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी रिलीज by any kind Yeah. which is not harming somebody is one of the cure Not of aggression. yourself also. yeah apparent मैं मतलब मैं वॉशरूम में जाके या तो अपना मुंह के ऊपर हाथ रख के चला सकता हूँ या मैं सामने के शीशे को तोड़ सकता हूँ. बट आपके पास सामने के choice है. शीशे को तोड़ना मेरे को हार्म करेगा ना. 100%. सो बेसिकली इंटेंसिटी रिलीज इज द क्योर ऑफ एग्रेशन. हाँ, बस यहाँ यू आर मोर देन हाफ वे देयर टू योर काम. आपने अपने एंगर को देखा, अवेयरनेस, बैठा, एक्नॉलेज किया क्या हुआ है, कहाँ से आ रहा है ये एंगर, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. अंडरस्टूड, राइट? व्हाट इज इट, व्हाई इज इट, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट. ओके, सो आपने उसको वैलिडेट करने की कोशिश ही मत करो किसी भी इमोशन को. बच्चा है वो, गुस्सा आ रहा है, उसको वैलिडेट नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए बेटा, उसको नहीं सुनना. उसे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए लेकिन गुस्सा आ रहा है, क्या करना है अभी, लेट्स टेक इट आउट. सोल्यूशन. या अब उसके बहुत सारे वेज है. यू टेक अ टावल, जोर से स्क्वीज करो, इंटेंसिटी निकलेगा. करते रहो करते रहो करते रहो जब तक वो पूरा निकल नहीं जाता. यू विल स्टार्ट क्राइंग. सो यू डू दैट ऑफ थिंग्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन कभी कभी ट्रॉमा बहुत इंटेंस होता है, वहाँ पे एंगर बहुत पुराना होता है आशीम. ओके, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि कभी कभी एंगर बड़ा पुराना होगा आपका, बट आपने सप्रेस और नम किया होगा, लेकिन वो इमीडिएटली आ जाएगा एंड देन यू आर लाइक वो इससे भी हेल्प नहीं हो रहा. सो देन द थेरेपिस्ट सीज कि वहाँ पे यू हैव टू फिगर इट आउट कि मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, नाउ आई नीड अ हेल्प. यू नो, अब थेरेपिस्ट सर्टेन टाइम्स क्या करते हैं कि वो आपको बोलेंगे कि यू नो यू सिट इन अ पोजिशन वेयर यू कैन एक्चुअली बैंग ऑन टू इट जोर जोर से. अगर आप नोटिस करो, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द प्लेस जहाँ पे व्हेन द हस्बैंड डाइज, विमेन उसके हाथ में चूड़ियाँ पहना के उसको जोर जोर से ऐसे करो. चूड़ियाँ तो ऐसे भी टूट सकती हैं, निकाल के भी टूट सकती हैं, ऐसे ऐसे क्यों करवाते हैं? So that the emotion comes out. Yeah, intensity of the grief will come out and then she'll start crying. क्योंकि उसको ये करने से क्या होएगा, उसको पेन फील होगा और उसको रियलाइज होगा कि ओह आई हैव लॉस्ट समथिंग, आई हैव लॉस्ट. अब उसमें आप ट्रुथ में आ गए. तो ये तो थेरेपिस्ट ही आपको बता सकता है, तो ये अंडर गाइडेंस करना सही रहता है. और तो अब वो रिलीज हो गया, बस रिलीज तक की जर्नी तक पहुंच जाओ आप. उसके बाद बॉडी ठंडी हो जाती है, उसके बाद आप रोओगे, वो अपने आप निकलेगा. आप ऑलरेडी सैडनेस तक पहुंच जाओगे, बस सैडनेस तक जैसे ही आप पहुंच गए उसके बाद रो लो, निकाल दो निकाल दो. And how to deal with guilt? Yeah. Because if I'm ignoring my guilt, maybe I'm taking drugs or maybe I'm being an alcoholic or I'm smoking up. This is just an example.
लाइक इफ यू टॉक फॉर अ लेमैन, कि अगर एक इंसान कुछ गलती कर दिया और उसको पता है कि मैंने गलती कर दी है, Yeah. ठीक है, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, बस यही बोलना है. एग्जैक्टली आशिम. गिल्ट का क्योर ही यही है, टू वैलिडेट दैट इमोशन कि वी ऑल आर ह्यूमंस. स्टॉप टॉकिंग टू योरसेल्फ द वे द वर्ल्ड टॉक्स टू यू. But then, like for example, I have hurt somebody, not hurt as in hurt. Yeah. मैंने किसी के इमोशंस इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट कर दिए हैं. दैट पर्सन इज टेलिंग मी दिस थिंग कि हर्ट कर दिया है तुमने मुझे, Yeah. एंड दिस हैज डन सो एंड सो डैमेज टू मी. Yeah. नाउ हाउ एम आई सपोज टू लेट गो दैट गिल्ट? Same procedure. बिकॉज अगर मैं उस गिल्ट को लेट गो करके अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाऊंगा तो ऑफकोर्स लगेगा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दूसरे हमारे बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं ये आज के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं. Am I right or am I wrong? 100%. Now, I want to get away with some kind of guilt that I've hurt somebody, and I want to move on in my life and get back to myself. तो उस गिल्ट को इग्नोर करने के लिए पहली चीज़ तो मैं अपनी गलती एक्नॉलेज नहीं करूँगा. चलो मैंने अपनी गलती एक्नॉलेज कर भी दी, सामने वाले के पास प्रूफ है. I'll start getting aggressive because I don't have any, आप अपना गिल्ट बढ़ा रहे हो. मैं अगर आप मुझे मेरी गलती बताए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, and I can't do anything about it now. So apparently ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत बार लोग करते होंगे Yeah. कि अगर एक पार्टनर पर दूसरे पार्टनर को उसकी गलती बता रहा है कि आपने मुझे इस पॉइंट पर यहाँ पर हर्ट किया है और मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आई नो आई एम रॉन्ग, Yeah. आई स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव. Yeah. स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव कि क्या है, और वो एकदम से बाहर आ जाएगा. इस सिचुएशन में उस गिल्ट को खत्म करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करना या नहीं भी करना, Yeah. उस चीज से बाहर आने के लिए व्हाट शुड समबडी डू? Okay, same है. So basically, what is it? जैसे हमने एंगर क्लिक किया, what is it? So पहली बात, इस स्टेज तक पहुंचना और ये एक्सेप्ट करना कि मैं गिल्ट में हूँ, ये ही बहुत बड़ी जर्नी है. क्योंकि गिल्ट बड़ा ही थिक इमोशन है. इट मेक्स यू फील वेरी अगली अबाउट योरसेल्फ. एंड ये भी अगली फील भी किसी ने करवाया होगा, इसलिए वो बॉडी ने वो उसकी फीलिंग स्टोर कर ली, तो गिल्ट से वो रिलेट कर लिया. गिल्टी इज अगली. ठीक है. अब वो अगली को किसी को देखना नहीं है, तो अगली मतलब शैडो, वो कोई देखना ही नहीं चाहता. तो अब गिल्ट को भी आप देख लो कि क्या है. ओके, दिस इज अ गिल्ट, आई एम गिल्टी, आई एम फीलिंग गिल्ट अबाउट मैंने इसको हर्ट करा है. अगेन सी इट एज एन इनर चाइल्ड. एक बच्चे ने कोई बहुत गलत काम करके आया है, मान लेते हैं. सपोज एक छोटा सा बच्चा, मैं स्कूल के इंसिडेंट्स बताती हूँ. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बहुत जोर से मार दिया. पॉसिबल है, हो जाएगा, गुस्से में कर दिया, एग्रेशन आ गया, मार दिया. एक टीचर इससे क्या पूछेगी? सबसे पहला सवाल क्या पूछेगी? आपने क्यों करा? व्हाई? अब वो क्यों में जजमेंट नहीं होना चाहिए. सो यू आर आस्किंग योरसेल्फ कि मैंने ऐसा किया होगा तो क्यों किया होगा. मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूं कि लोगों को हर्ट करूं. मेरी ये सोल ही नहीं कहती कि मैं लोगों को जाकर हर्ट करूं या मैं करूं. उस इनर चाइल्ड के पास वैलिड पॉइंट होगा कि उसने ऐसा क्यों किया होगा. रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, देन सडनली आप उसको हर्ट कर दे रहे हो बिना किसी इंटेंशन के. सो दैट मीन्स कुछ तो उस जिसने हर्ट करा उसका भी तो कोई पॉइंट होगा ना यार. ऐसी तो कोई किसी को हर्ट नहीं करता. तो आप देखो कि व्हाट इज इट एंड वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. अगेन वही, व्हाई, मैंने क्यों किया होगा, ये कहाँ से आ रहा है. एंड देन व्हाई व्हेन आई गेट द सॉल्यूशन कि मैंने सपोज किसी को क्यों हर्ट किया, इसके इमोशंस को, इसकी फीलिंग्स को मैंने क्यों हर्ट किया, मेरे को उसका जवाब मिल गया. नाउ यू कन्वे द सेम थिंग्स टू दैट पर्सन. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस इंसान को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तू गलत सोच रहा है या मैं सही हूँ अपनी जगह पे. नहीं. सो यू टेल दैट, मैं रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कि ओके मैंने ऐसा किया, जैसे आपने अपने पर्सनल में एक्सेप्ट किया कि मैं मानता हूँ मैंने ये किया, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव था करने का, लेकिन ये तुमको हर्ट हुआ है, हम इसको इस तरीके से बचा सकते हैं. अगेन व्हाट, व्हाई, हाउ. So what are you feeling? Where is it? Why is it? How we can resolve it? अब जैसे why हो जाएगा, तुमको अपना पता होगा कि अच्छा ठीक है मैंने ऐसा इसलिए किया है, लेकिन ये सामने वाले को हर्ट किया और मेरे ये मेजर्स ठीक नहीं है. I can rectify that and you go to that person. Firstly you ask yourself कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ. तो वो बताएगा आपको कि चल यार अपन ने गलती करी है,
हम अपने इमोशंस पे काम करेंगे, लेट्स अपोलोजाइज टू दैट पर्सन. सो मे बी यू विल नो, यू विल गो कि ठीक है यार, देख मैं ऐसे यहाँ से आ रहा हूँ, मैंने इसलिए किया, आई एम अपोलोजेटिक अबाउट इट एंड आई विल मेक श्योर कि दोबारा ना हो, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. So basically, acknowledgement of your mistake and then the right apology, I think, is the Apology cure to of. self first. Yeah, definitely. Yeah. And then to the person also. I think, Yeah. देखो, If guilt. it comes from the true space, Ashim. If it comes from the true space. कभी-कभी हमें गिल्ट इनबिल्ट भी होता है यार. इनबिल्ट भी होगा. मतलब चलो कुछ ये तो आपने इंसिडेंट बता दिया कि किसी के साथ आपने गलत करा है, समझ आता है. लेकिन कुछ गिल्ट तो इनबिल्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पापा मेरे लाइक ही इज आई स्पिरिचुअल, मतलब रिलीजियस, वेरी रिलीजियस. सुबह उठना, पाठ पूजा करना है, तो वो हमें बड़ा बोलते हैं कि गुरुद्वारे जाना है, अमृत वेला करना है. अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज अ पर्सन सम ईयर्स बैक, आई वॉज वेरी गिल्टी कि यार हम करते ही नहीं है, तो बाबा जी हमें देख रहे हैं, गलत हो जाएगा. उनकी भी तो इनबिल्ट ऐसी ही हुई है, क्या करें अब. तो ये तो इनबिल्ट गिल्ट हो गया. जब तक मैंने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो जो सुख गुरुद्वारे जाके मिलता है, वो सुख मुझे अपने मंदिर में बैठ के मिल रहा है, तो ये भी एक गिल्ट है. शेप है ना. तो आपको देखना है ये गिल्ट आपको दिया गया है या आपने सच में कुछ गलत करा है. ये एक्वायर्ड है या ये सेल्फ है. या I get that. And ma'am, what about I think बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी बहुत होती है. आजकल यूथ इज नॉट एबल टू हैंडल देयर इमोशंस वेल. अर्लियर ऐसा होता था, लोग गांव वगैरह में रहते थे तो कभी ये एंजाइटी वगैरह होती नहीं थी कि मतलब डर बहुत होता था अपने से बड़ों का, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा थी, इतने एडवांस्ड हम लोग नहीं थे. तो मेरा सिर्फ एक आपसे पूछने का मतलब है कि जैसे आजकल के यूथ में एंजाइटी इज अ वेरी कॉमन थिंग, पैनिक अटैक्स is a very common thing. People tend to overthink a lot, jump on conclusions and then feel bad about it, get anxious. Yeah. If I ask you as a teacher or as a mentor कि मैम यूथ को अपनी एंजाइटी के ऊपर कैसे काम करना चाहिए. ये बड़ा वैलिड बात आपने बोला कि पहले के लोगों में एंजाइटी एक्चुअली होती ही नहीं थी. सच बात तो ये. क्यों? बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी वाज इन्वॉल्व्ड. लोग काम पे जा रहे हैं, जो घर की लेडीज़ हैं वो बहुत फिजिकल वर्क कर रही हैं, है ना. तो बॉडी इसमें बहुत, अब जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग जिम करते हैं तो जिम करने के बाद एक सडन चेंज हो जाता है मूड, है ना. एक वियर्ड सा, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर हार्मोन दैट्स रिलीज्ड इन योर बॉडी. सो पहली बात तो ये है कि उस टाइम के जो लोग थे वो इसलिए भी थोड़े सेटल थे क्योंकि उनका रिलीज अपने आप ही हो जाता था, तो एंजाइटी की नौबत ही नहीं आई. सपोज अगर कोई फीमेल घर की गुस्सा है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो जोर जोर से क्या कर रही है, कपड़े धो रही है. अब वो इमेजिन कर ले उसमें उसके पति का फेस है. सो निकल गया गुस्सा उसका, तो बॉडी से तो रिलीज हो गया, इंटेंसिटी निकल गई, एंगर निकल गया. आज के टाइम पे हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो इतना पुअर है, ये सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी का. वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड. सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टुवर्ड्स रूटीन द नहीं है. बॉडी. वही वाली बात है अगेन, वी डोंट लव आवरसेल्फ. अच्छा, अब यही कोई आपकी पार्टनर बोल दे, बेबी कल से जिम जाना है आपको, बस 6 बजे सुबह उठ के आप जिम हो गए. जैसे ही उसने ब्रेकअप कर लिया वापस आप उसी में हो. तो मतलब जो प्यार आप उसको दिखा रहे हो, प्यार तो आपके अंदर है, वो अपने आप को खुद ही दिखा दो. तो एंजाइटी तक का नौबत ही नहीं आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टू डील विद द एंजाइटी इज टू फर्स्ट चेंज योर लाइफस्टाइल. There has to be the movement, Ashing. And कुछ चीज़ें ना हमें सौगात में मिली है, इस जनरेशन को कुछ चीज़ें सच में सौगात में मिली है, जैसे कि प्राणायाम, जिसको आज के टाइम पे बड़े बड़े लेवल्स पे कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रेथ वर्क से लिंक किया जाता है. प्राणायाम कितना सिंपल है. प्राणा आपकी बॉडी में एंजाइटी को हील करने का दावा रखता है. कर रहे हैं हम प्राणायाम. योग, What is योग? It's Everybody like is behind the screen just scrolling reels. जैसे अभी हम एक एपिसोड कर रहे हैं, एपिसोड देखेंगे and then they'll be busy in their life. But I think this is very important and like any other emotion that you will specifically want to talk about. मैं बस इतना बोलूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी में, तो आधा हाफ वे प्रॉब्लम ना आएगा ही नहीं. And start talking to yourself. हाफ वे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. जैसे कि यू डू प्राणायाम, यू डू योगा, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, सुनने में बड़ा बोरिंग लगेगा कि माँ बाप भी यही बोलते थे, ये है वो है, बट ये वर्क करती हैं. गो टू जिम,
तुम कुछ मत करो भाई, उठ के बस वॉक कर लो, क्योंकि आपके लोअर चक्रास वर्क कर रहे हैं ना, सब कुछ अलाइंड है आशिम। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विद इन। आपकी बॉडी में चक्रास हैं, इतने सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन ये 7 चक्रास ठीक रहेंगे अगर, यू आर देयर। लेकिन कोई करना भी नहीं चाहता ना, बस कोई चाहता है ओ सैडनेस आ रही है, बस कुछ हो जाए ऊपर से, वो मेरे से बात कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमने आउटसोर्स कर दिया ना यार अपने इमोशंस। कोई खुद के लिए प्यार ही नहीं है। तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, टॉक टू योरसेल्फ, बी योर फ्रेंड। सिंपल बात है यार, जो आप बाहर एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों को देने के लिए खुद को, वो खुद को दे दो, अपने आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल आशिम, चलो एक ही चीज देखते हैं। सपोज आप और मैं मिले एक दिन और मैंने देखा कि आशिम सपोज टॉबलेरोन खा रहा है, ठीक है। हम दूसरी बार मिले तो मैंने देखा आशिम टॉबलेरोन खा रहा है। अब मैं तीसरी बार गई, आशिम का बर्थडे था, मैं आशिम के लिए क्या लेके जाऊंगी? टॉबलेरोन। मुझे कैसे पता उसको टॉबलेरोन पसंद है? क्योंकि वो खुद को टॉबलेरोन दे रहा है। तो आप जो खुद को नहीं दे रहे, वो आप लोगों से कैसे मांग सकते हो? अपने पार्टनर से कैसे मांग सकते हो? मैंने एक चीज देखी है, ऐसे लोगों को ना लोग हर्ट करने से डरते हैं जो खुद से प्यार करते हैं। पावर है, जिनको पावर। पता है ना कि ये अपने लिए सोच कर चलता है या ये अपने लिए सोच कर चलती है ना, कि वो अपने आप को पैम्पर करती है, चाहे मैं उसकी लाइफ में रहूं या नहीं रहूं। तो वो खुद को उसकी लाइफ में नीचा फील कराने का जो डर है ना लोगों की लाइफ में, वो उन्हें कभी हर्ट नहीं करने देगा। वो अपने आप चेंज करेगा विदाउट इवन टेलिंग। यस, 100%। बट या ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट आई थिंक वो भी इसके बाद ही आता है ना। मतलब कोई इंसान, अच्छा चलो ठीक है, यहीं पे देखो, आपने मुझे यहाँ बुलाया, राइट? आप कोई, you said that ma'am, we've seen you mentoring and all that, right? And we've seen your content also. मैं कुछ तो खुद से कम्युनिकेट करती हूँ, जो मैं सामने कम्युनिकेट करती हूँ, और वो पहुंच रहा है मैसेज। तो मेरा कुछ तो कम्युनिकेशन अंदर क्लियर है। तो मेरी जर्नी शुरू ही अंदर से हो रही है आशिम। सब इमोशंस हमारे अंदर जनरेट हो रहे हैं और अंदर ही रिजॉल्व होंगे। तुम बाहर चले जाओ, कुछ भी कर लो, शेयर कर लो, लाइट लगेगा, सोल्यूशन खुद के पास ही है। सोल्यूशन खुद के पास है। शेयर करने से प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के दे दिया है, मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना लेके खुद से। डेफिनेटली। इंडीड लास्ट तक तो यही करना पड़ेगा ना, जाना तो किचन में पड़ेगा, ग्लास तो उठाओगे, पानी तो खुद पियोगे, वो तो मम्मी पापा कोई नहीं पिला सकता। कुछ तो काम खुद करना पड़ेगा। बस यही क्रक्स है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा खुद से। भाग लो जितना भागना है। आज की एज में 60 साल बाद, 70 साल, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट लॉट ऑफ पीपल डाइड विदाउट हीलिंग इन दिस वर्ल्ड. They died with suppressing of their emotions. They don't know what they have done to their lives. If we talk about generations, like great grandfathers. But we are blessed with so many resources. Though we are in Kalyug, but हमारे पास resources ही resources ना. आप अवेयरनेस आदमी के मन में अगर आ जाना चाहे तो आ सकती है. डिसिप्लिन है. आप अवेयर हो, आपको भी पता है मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ गलत जा रही हूँ. मुझे भी पता होता है. सबको पता होता है. सबको पता होता है what they are doing. What are you doing about it? Are you waiting for someone? कल्कि के अवतार को आने का वेट करो, आके बताएंगे, वो भी नहीं बताएंगे. सो आपका खुद से कम्युनिकेशन होना इज लाइक बी एन ईगल, कीप लुकिंग फॉर इट. व्हाट इज इट दैट आई वांट टू हील. एंड बहुत ही सिंपल है. ये जो हम रेमेडीज में फंसते जा रहे हैं ना, ये जो स्कैम ऑफ रेमेडी चल रहा है, एक टाइम तक हेल्प करेगा. ये सिर्फ टूल है, चाहे वो क्रिस्टल्स हो. आई एम नॉट डिनाइंग कि मत करो, डेफिनेटली वेयर क्रिस्टल्स, राइट, wear gemstones, do what you feel like, but inner work करे बिना वो सब temporary है. ये सब mediums हैं. You should be first clear with yourself that why, what and how, and I think then work on remedies because they are just a supportive hand. 100%. क्योंकि कुछ लोग, मैं मतलब एक चीज क्लियर कर देता हूँ, many people come and they want the astrologer or the mentors, even their teachers, to do magic which nobody of us can do. Even a magician has some tricks. Of course. है ना. तो हम सिर्फ रेमेडीज एक उस तरह से दे सकते हैं कि दिस विल हेल्प यू मेक सिचुएशंस बेटर, बट वी आर नॉट अलाउड टू डू, मतलब वी आर नॉट एबल टू डू. हम मैजिक नहीं कर सकते, हम जादू नहीं कर सकते. तो रेमेडीज पे जाने से पहले की जर्नी को थोड़ा सा खुद पे एनालिसिस करने पे अगर हम स्पेंड करें तो आई थिंक बहुत सारी चीजों को हम बचा पाएंगे और बहुत सारी चीजों को हम अपने आप से रिजॉल्व कर पाएंगे. वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव. आशिम, हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, हर इंडिविजुअल जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो,
you'll make a world a better place to live. We And you really need start light. talking and loving yourself. Don't 100%. let it get dependent upon somebody else. Yeah. First love yourself and know this thing that अकेले आए थे अकेले जाओगे. इस Oh, दुनिया में True. अपने आप को हैंडल कर लिया, अपने आप को खुश कर लिया, अपनी फैमिली को खुश कर लिया. आई थिंक दैट मेक्स सेंस. True. राइट. ओके, सो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो आज हमने नई सीखी आपसे. बेसिकली what I particularly learned from this session was that how we can master our own emotions just by a bit of self analysis and communication. Yeah. इन जनरल भी खुद से भी. बट बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत सारी चीज़ें you. आपसे सीखी कि अपने इमोशंस को मास्टर कैसे करना है. एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट का मैं टॉपिक भी ये रखूंगा दैट हाउ वी कैन मास्टर आवर इमोशंस एंड मेंटर आवर सेल्फ फर्स्ट, जिससे हम अपनी काफ़ी सारी आदतों को, इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएं. अपने आप से शुरू करें और इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएं. Sure. But we'll keep meeting you with Thank you. further more topics to be covered, जिसमें आप हमें बताना और काफ़ी सारी चीज़ें. But I really appreciate your presence and it was really loving meeting you, ma'am. It's for really lovely. Thank you so much, Ashim, for having me. It is indeed my pleasure to have you. And I truly bless you from my heart that Thank this you. Thank you so podcast, the channel goes a huge success. Thank you. And you're doing great work. Thank you, so ma'am. Thank you so kudos to that. Thank you. So thank you everybody. अगर आप वीडियो के इस मुकाम तक आ गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आगे मिलते रहेंगे हम प्रियंका मैम से और आगे मिलते रहेंगे हम आप लोगों से अलग अलग अच्छे कंटेंट के साथ. विल टीच यू गाइज हाउ टू मास्टर योर इमोशंस विद मैम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वार्तालाप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.